हेलो एवरीवन। आज हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। ओके। तो मैंने सोचा पहले कि नोट्स बनाऊं। ठीक है, नोट्स बनाऊं फिर लिखूं सारा कुछ, फिर जाके मैं पढ़ूं। पर उसमें बहुत टाइम टेकिंग रहता है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी करें, जैसे कि है गिग्स फॉर गिग्स है, W3 स्कूल हो गया, तो इस तरह की वेबसाइट पे भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए एक एग्जांपल है कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और बहुत डेप्थ में दिया हुआ है इस वेबसाइट पे। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? सो मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। सो मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट है एआई का। ठीक है, कोई अगर पूछे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, आप कह सकते हो कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई that focuses on developing model and algorithm. ओके, तो ये क्या करता है? ये डेवलप करता है। इसका फोकस है कि मॉडल डेवलप करने और एल्गोरिदम डेवलप करने। वो कैसा मॉडल और एल्गोरिदम डेवलप करता है? दैट लेट कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा without being explicitly programmed for every task. So in simple word, ML teaches system to think and understand like humans by learning from data. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो इंसान की तरह बिहेव करे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, डेटा से। तो बेसिकली हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल वो उसको हम ट्रेंड करते हैं। ठीक है, इस डेटा फीड करके, डेटा दे के, तब वो नेक्स्ट टाइम जो भी हम मॉडल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। उसका कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले क्या, मशीन लर्निंग बेसिक्स में क्या क्या है? जैसे डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग हो गया, फीचर सिलेक्शन हो गया, मॉडल ट्रेनिंग हो गया, फिर मॉडल इवैल्यूएशन। ये सिंपल बेसिक है कि मशीन लर्निंग वर्क्स कैसे करता है। इन डिटेल में हम ऐसे देख सकते हैं हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। फर्स्टली वी सिलेक्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। We have problem statement. After that, we have to collect data, relevant data. Okay, whatever we have problem, accordingly we have to collect data. And then when we collect data, after that we have to clean that data set or data. Okay, because why this is need, like data cleaning is why necessary? Because when we have data set like large amount of data, in that null values are available, uh, maybe some like text data available, so we have to clean that data. Okay, and then feature engineering, we will see what is feature engineering. And then EDA, exploratory data analysis. Okay, like we have to find mean, median, like that. This type of thing we will do in this. And then data modeling and model evaluation, and at the end deployment or optimization. Okay, this is the whole process of machine learning. So in real life, where machine learning uses, okay, like machine learning use cases. So this is the example: image recognition used in facial recognition, self-driving cars, and medical imaging. Like when we drive the car nowadays, self-driving cars. Okay, so automatically cars car understand that where, like car slow down automatically and car break down, like everything happened automatically. Okay, so that how this works, इसके पीछे मशीन लर्निंग होता है, इट्स बिहाइंड ML वर्क्स. ओके, एंड NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. ओके, यूज्ड फॉर चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन, एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस.
And third one is recommendation systems like Netflix, Amazon, Spotify. Like when we watch movie or when we purchase some product from Amazon or when we watch movie on Netflix, that time what happened when suppose you watched a movie, that movie is adventure. Okay, so next movie automatically come in your like display, next adventure movie. So Netflix works like recommend you. Okay, like like you are interested in adventure, so that's why automatically they gave you adventure movie. So you will spend more time on Netflix, you will watch more movies on there. Understand? When we purchase some items purchase on Amazon, suppose I want laptop, automatically Amazon recommends like laptop related accessories, so that increase the shopping. Okay, next, predictive maintenance. Machine learning is mainly divided into three core types: supervised machine learning, unsupervised machine learning, reinforcement learning. Train, like what is supervised learning? Uh, so train model on label data to predict or classify new unseen data. Okay, but what is unsupervised learning? Finds pattern or groups in unlabeled data like clustering or dimensionality reduction. We will see in detail. Okay. No, note the following are not part of the original three core types of ML, but they have become increasingly important in real world application, especially in deep learning. So, additional types. So, mainly three types are there, okay, of machine learning, but but some other types are like there additional types: self-supervised learning, semi-supervised learning. What is semi-supervised self-supervised learning? It is often considered as a subset of unsupervised learning. What is self-supervised learning? It is often considered as a subset of unsupervised learning, but it has grown into its own field due to its success in training large-scale models. It's, it generates its own level from the data without any manual labeling. Suppose in supervised learning, all data are labeled data, and in self-supervised learning, machine like it generates its own labeled. Okay, and semi-supervised learning. This approach combines a small amount of labeled data with a large amount of unlabeled data. It's useful when labeling data is expensive or time consuming. Okay, so we will see in detail. Okay, don't worry. So in this website, ML like available in module form. In module 1, here we will see machine learning. We will study machine learning pipeline, and module 2, types of machine learning, supervised machine learning. In the all the available like algorithm we will see, and then model 3 is unsupervised learning. In this we will see so many algorithms, and at the in model 4, third type of machine learning, reinforcement learning. We will see algorithm also here, and then model 5, semi-supervised learning, forecasting model, and deployment of ML. Okay, so all things are listed here. We will see one by one. So today we will see module 1, machine learning pipeline. This section covers pre-processing, exploratory data analysis, and
model evaluation to prepare data, uncover insights and build reliable model. ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे इस सेक्शन में कि जो भी प्री प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेस होता है डेटा का, प्री प्रोसेसिंग, डेटा यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, फिर जाके हम यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या होता है वो प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो पहला क्या है प्री प्रोसेसिंग में, पहला है ये मॉडल लर्निंग, मशीन लर्निंग पाइपलाइन में फर्स्ट क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है, अगर हम ऐसे देखें, है ना, व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, है ना, तो आपको क्या समझ में आ रहा है डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब इसमें क्या होगा? हम्म, जरा सोचो कि प्री प्रोसेसिंग मतलब व्हाट। बोलो। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स, अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग रॉ डेटा। समझ रहे हो, आपके पास सिर्फ डेटा दिया हुआ, ठीक है, आपको मान लो मैंने किसी इंसान का डेटा दिया आपको, वो डेटा कैसा भी हो सकता है, या तो पूरा क्लीन डेटा हो, या तो सिर्फ आपको डेटा मिल गया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ है, एक्स्ट्रा ही चीजें हैं, उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। तो उसको यूज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस, क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है, क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग रॉ डेटा, समझ रहे हो, रॉ डेटा को क्लीन और प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेस, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल। समझ रहे हो, हम इसलिए वो प्री प्रोसेसिंग करते हैं ताकि हम यूज कर सकें मॉडल प्रिपेयर बनाने में और एनालिसिस करने कि जिसका भी डेटा है उससे हम क्या हम समझ सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि रियल वर्ल्ड डेटा इज यूजुअली इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट, नॉइजी और मेसी, सो प्री प्रोसेसिंग इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड मॉडल परफॉर्मेंस। समझ रहे हो, अगर मान लो आपके पास डेटा है उसमें आउटलायर है प्रेजेंट, अगर आउटलायर है, अगर आप मॉडल बनाए या फिर सपोज आपके पास सिंपल डेटा है, किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स है, आपके पास उसका जो मार्क्स है या फिर रोल नंबर, मार्क्स ले लो 20 30 40 50 60, अब एकदम से उसमें एक आउटलायर दे दिया जाए तो मीन पे कितना चेंजेज आएगा, है ना, तो वो इनरिलेवेंट हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकते उसको, मीन वहां पे अलग ही आएगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमको पहले आउटलायर रिमूव करना पड़ता है। ये जो आउटलायर रिमूव किया, ये क्या हुआ, डेटा क्लीनिंग, हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि रॉ डेटा को एक, जो मुझे डेटा चाहिए एक प्रॉपर डेटा वैसा मिलेगा, ताकि हमारा एक्यूरेसी अच्छा हो, मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा हो। ये सिंपल ये हुआ, ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड preparing raw data so that it can be used for analysis or machine learning model. Okay, the first thing is ML workflow। हम लोग देखेंगे कि ML workflow क्या है।
एमएल वर्क फ्लो मतलब होता क्या है, समझ में आ रहा है आपको कुछ? लाइक व्हाट इज एमएल वर्क फ्लो, मतलब व्हाट इट मीन? सो एमएल वर्क फ्लो is the structured process used to build, train, evaluate and deploy ML model to solve real world problem। क्या है, समझ रहे हो? वो सारा प्रोसेस है कि हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ तक डिप्लॉय करने तक हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इज a structured process that defines how machine learning models are deployed। ओके, हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, deployed and maintained। It consists of a series of steps that ensure that model is accurate, reliable and scalable। समझ रहे हो? तो ये जो हो रहा है कि मॉडल कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इसको कहते हैं मॉडल इवेल्युएशन या इवेल्युएट करना कि आपका मॉडल कैसा है। ठीक है ना? तो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग या प्री प्रोसेसिंग, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, model selection, model training, model evaluation and deployment। This is the process of machine learning life cycle or workflow, you can say। It concludes defining the problem, collecting and preparing data, exploring pattern, engineering features, training and evaluating models, deploying them into production and continuously monitoring performance to handle issues like data drift and retraining needs। Below are the key steps of ML life cycle। तो अभी हम देखेंगे, हम बहुत डिटेल में देखने वाले, तो इसमें घबराने की बात नहीं है और हम बहुत अच्छे समझाएंगे भी आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम डिफाइनिंग। इसका मतलब क्या समझ में आया, व्हाट इट मीन बाय प्रॉब्लम डिफाइनिंग? आपको समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम। समझ रहे हो? लेकिन अगर आपको पास मान लो किसी हाउस का डेटा है, किसी घर का डेटा है, आपको पता ही नहीं है कि हम आपको करना क्या है, तो कैसे आप काम करोगे? तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मान लो मुझे किसी हाउस का प्राइस पता करना है, प्रिडिक्ट करना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हुआ, ये हुआ कि प्रिडिक्ट हाउस प्राइस, या किसी ईमेल को बताना है कि स्पैम है या नहीं, स्पैम नहीं है। ठीक है, अगर ये देखना, ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व्हाट इज योर गोल, what type of output you want, what success metric, this type of thing is problem definition। So here we will, let's see what is here written। So the first step is identify and clearly defining the business problem। Understand? हमको सबसे पहले पता करना होगा कि बिजनेस प्रॉब्लम है क्या। A well framed problem provides the foundation for the entire life cycle। Important things like project objectives, desired outcomes, and the scope of the task are carefully designed during this stage। समझ रहे हो? इसमें कैसे हम करते हैं, तो जो स्टॉक होल्डर होता है उससे हम कोलैबोरेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका बिजनेस का गोल क्या है ना? या हम क्या करते हैं, डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड सक्सेस क्राइटेरिया, या फिर इंश्योर क्लैरिटी इन डिजायर्ड आउटकम। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये हो गया। अब सेकंड थिंग क्या हो गया, डेटा कलेक्शन। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि डेटा कलेक्ट करना। तो डेटा हम जब कलेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सोर्स से हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए,
रिलेवेंट डेटा होना चाहिए, या किसी डेटाबेस से हम करेंगे, या किसी CSV फाइल से डेटा देखेंगे, API से, एक्सेल से, या वेब स्क्रैपिंग से। डेटा कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। तो डेटा कलेक्शन फेज involves systematic collection of data sets that can be used as raw data to train model। समझ रहे हो? हम जो मॉडल बनाने के लिए जो रॉ डेटा यूज करते हैं, वो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, या रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। द क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ डेटा डायरेक्टली अफेक्ट द मॉडल्स परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे वो डेटा के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज हमारा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। हियर सम बेसिक फीचर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ पे कुछ कैसा होना चाहिए? रिलेवेंस होनी चाहिए। डेटा कलेक्ट डेटा शुड बी रिलेवेंट टू द डिफाइंड प्रॉब्लम एंड इंक्लूड नेसेसरी फीचर्स। अगर मान लो मुझे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना, मैंने बोला कि इस क्लास के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पहले समझेंगे। एवरेज मार्क्स निकालना स्टूडेंट्स का। अब किसी को मैंने बोला कि तुम जाओ डेटा कलेक्ट करके लाओ, वो क्या किया? वो गया, मार्क्स लिखा, किसी का एज लिख लिया, किसी का नाम लिख के आ गया, तो वो कैसा डेटा हुआ? इररिलेवेंट हो गया। रिलेवेंट डेटा मीन्स क्या? हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लेके आया। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें जरूरी है। क्वालिटी इंश्योर डेटा क्वालिटी बाय कंसिडरिंग फैक्टर लाइक एक्यूरेसी एंड इथिकल यूज। अब मान लो किसी आलसी इंसान को मैंने बोल दिया मार्क्स कलेक्ट करके लाओ, वो गया, आधे रास्ते में सोचा मैं खुद से लिख देता, तो जिसको 20 आने थे उसको मान लो 5 दे दिया, किसी को 20 में से 20 दे दिया, किसी को 25 दे दिया। तो क्वालिटी बहुत जरूरी है डेटा, एंड क्वांटिटी। अब मान लो कोई गया 5 स्टूडेंट का लिख के आ गया, अब 100 स्टूडेंट का क्लास है, तो एवरेज जो मार्क्स होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वांटिटी भी जरूरी है, ज़्यादा जितना है हमारे डेटा का साइज अच्छा होना चाहिए, कितना लेके आ रहे हो। गैदर सफिशिएंट डेटा वॉल्यूम टू ट्रेन और रोबस्ट मॉडल एंड डाइवर्सिटी। इंक्लूड डाइवर्स डेटा सेट टू कैप्चर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सेंसर एंड पैटर्न। समझ रहे हो? ये सारे प्रोसेस हैं डेटा कलेक्शन के। कैसा होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, और डाइवर्सिटी होना चाहिए। अब स्टेप 3 क्या है? डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, है ना। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। Raw data is often messy and unstructured, and if we use this data directly to train them, it can be lead to poor accuracy. When we need to do data cleaning and pre-processing, which often involves, समझ रहे हो? अगर हम मेसी और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करेंगे तो हमारा जो मॉडल होगा उसका एक्यूरेसी बहुत ही खराब होगा, घटिया क्वालिटी का होगा। क्वालिटी मीन्स, घटिया मीन्स कि वो प्रिडिक्शन उसका बहुत ही बेकार होगा। समझ रहे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। समझ रहे? हियर फर्स्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए? डेटा क्लीनिंग, लाइक एड्रेस इशू सच एज मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, इनकंसिस्टेंसीज इन डेटा। डेटा क्लीनिंग मीन्स क्या? हम एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह का इशू है हमारे डेटा सेट, लाइक मिसिंग वैल्यू, हो सकता है इम्पटी रॉ हो तुम्हारे पास, आउटलायर्स हो, कुछ ऐसा वैल्यू है कि बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा वैल्यू है कि बहुत निगेटिव है। समझ रहे हो? इनकंसिस्टेंट डेटा मीन्स कुछ वैल्यू है, कुछ नहीं है, गायब है, कंसिस्टेंट नहीं है। एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स, स्केल वैल्यू एंड इनकोड कैटेगरिकल वेरिएबल फॉर कंसिस्टेंसी। मान लो तुम्हारे पास डेटा है, अब मान लो एज है किसी का, मैंने बोला स्टूडेंट का डेटा लेके आओ, उसने क्या किया? एड्रेस में उसने ये न्यूमेरिकल के जगह पे अल्फाबेटिकल डेटा दे दिया, एज में उसने अल्फाबेटिकल यूज कर लिया, ईयर में उसने अल्फाबेटिकल यूज कर लिया।
तो उसको हमको क्या करेगा, न्यूमेरिकल चेंज करना पड़ेगा, या तो मीन से रिप्लेस करते हैं हम, या तो उसको हम जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से हमको वहाँ पे फिल करना पड़ता है कंसिस्टेंट बनाने के लिए। एंड डेटा क्वालिटी, ऑब्वियसली डेटा क्वालिटी मैटर करता है। डेटा कैसा होना चाहिए तुम्हारा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए एंड प्रिपेयर फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस। तो ये सारा प्रोसेस हो गया डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, समझ रहे हो? ठीक है। स्टेप 4 हो गया ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे पाइथन का भी यूज करेंगे, पाइथन भी देखेंगे और देखेंगे क्या होता है। ईडीए क्या होता है, ईडीए क्या होता है, एनीबॉडी? So EDA is the process of understanding data set using statistics and visualizations before building a machine learning model. हमको जब मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्टैट का यूज करके और विजुअलाइजेशन लाइक ग्राफ का यूज करके, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, बाय चार्ट, जो भी है, इसके थ्रू हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि डेटा हमारा कैसा है, क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने से पहले। ठीक है। It helps you understand patterns, detect error, find relationship, choose the right ML model. ये सारा उसमें हेल्प करेगा। और ईडीए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में, ट्रेन करने। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। टू फाइंड पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक हिडन इन द डेटा, EDA is used to uncover insights and understand the data's structure. During EDA pattern, trends and insights are provided which may not be visible by naked eyes. मतलब जो तुम्हारे पास डेटा है, तुमको नॉर्मली नहीं दिख पा रहा है कि उसमें क्या पैटर्न है, उसका क्या ट्रेंड है, किस तरह का डेटा है, वहां पे हम ईडीए परफॉर्म करते हैं, ताकि जो मुझे दिख नहीं रहा है, जो मुझे देखना चाहिए, वहां पे ईडीए लगा के स्टैटिस्टिक्स और सम विजुअलाइजेशंस का यूज करके मुझे डेटा से इंसाइट्स मिलता है, ट्रेंड मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। These valuable insights can be used to make informed decision, और तुमको डिसीजन लेने में वो हेल्प करता है जब तुम वो इंसाइट्स को समझते हो। Here are the basic features of EDA. Exploration. Use statistical and visual tools to explore pattern in data. हम डेटा का पैटर्न पता करते हैं using statistics or some visual tools like histogram, bar chart, anything. And patterns and trend. Identifying underlying patterns, trend and potential challenges within the data set. हमको इसमें ये भी पता चल जाता है किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ेगा डेटा में। आगे इंसाइट्स मीन्स व्हाट, gain valuable insights for informed decisions making a later stage, समझ रहे? एंड डिसीजन मेकिंग मीन्स यूज ईडीए फॉर फीचर इंजीनियरिंग एंड मॉडल सिलेक्शन। अब यहाँ पे आता है फीचर इंजीनियरिंग क्या है ना, व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग? तो फीचर इंजीनियरिंग का है ना, पहले इस चीज को समझते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या है? फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग और selecting useful input variable from raw data to improve machine learning model performance। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस है क्रिएट करने का, मॉडिफाई और सिलेक्ट करने का इनपुट
वेरिएबल से, और डेटा का मतलब रॉ डेटा से, समझ रहे हो, ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए, ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू बेटर, मोर मीनिंगफुल फीचर्स so that model can learn pattern more accurately, है ना। फीचर इंजीनियरिंग क्या करता है समझ रहे हो। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्या करता है, मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, helps model understand pattern, reduces noise in data, make model training faster, this type of thing, okay। गुड फीचर्स, बेटर मॉडल। तो तुम्हें, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए, अगर कोई डेटा है, रॉ डेटा, डेट है सैलरी, आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग डेट क्या, डे क्या हो जाएगा, 2 मंथ 4 ईयर 2026, सैलरी 50। So model understand numeric features better than raw date text, okay। So types of feature engineering, feature creation, create new features, like create new columns from existing data, age, age group, youth, adult, date, year, month, day, height, weight, BMI, okay। Feature engineering and selection is a transformative process that involves selecting only relevant features to enhance model efficiency and prediction while reducing complexity. Here are the basic features of feature engineering and selection. Feature engineering: create new features or transform existing ones, capture better patterns and relations. Feature selection: domain expertise। नेक्स्ट जो है सिक्स, स्टेप 6, मॉडल सिलेक्शन। फॉर अ गुड मशीन लर्निंग मॉडल, model selection is very important part, as we need to find model that align with our defined problem, nature of data, complexity of problem, and the desired outcomes, okay। So in model selection is very important part. So model selection is the process of choosing the best machine learning algorithm for your problem and data set. Different problem requires different model. Suppose if you want to find, or if you want to try to find spam or not spam email, ठीक है, so for that we have categorical form, spam or not spam। So for this type of problem we use classification. If we use here regression, then what, so many issues are there. So different problem requires different model. Choosing the right model helps achieve better accuracy and performance. Why model selection is important? Improve predictions accuracy, reduce errors, save training time, avoid overfitting and underfitting, helps solve problem effectively. So what is the, like, if you want to identify problem type, then what type of problem? So first is regression problem, आउटपुट कैसा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू, ओके। सपोज हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, सैलरी प्रिडिक्शन, दिस टाइप ऑफ थिंग इन regression problem. So common models we use in regression problem:
is linear regression, decision tree regressor, random forest regressor या फिर SVR support vector regression. This type of model we use in this type of problem. Suppose you have classification problem. So output is your categorical. Okay, output like spam or not spam, fail or pass. This type of output you will have. In that case, that type of problem in classification problem. So predict class levels. Okay, spam or not spam email, disease prediction, yes or not, customer churn, leave or stays, this type of problem. So common model we use in classification problem is logistic regression, decision tree, random forest, KNN, SVM, naive bias. And third one is clustering problem. Okay, I will write here. Okay. Topic is model selection. Okay, तो मॉडल सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो पहले मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। और मॉडल सिलेक्शन होता क्या है? मॉडल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ choosing the best model choosing the best machine learning algorithm algorithms for your problem. Okay, so this is the definition, problem and data. So different model, the different problems require different model. Okay, so choosing the right model, क्या बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। So choosing
the right model helps achieve better accuracy and performance. ओके, सो डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग टाइप का मॉडल यूज करते हैं, है ना। अब है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमारे जो मॉडल का प्रिडिक्शन है उसका गुड एक्यूरेसी हो, रिड्यूस एरर, सेव ट्रेनिंग टाइम, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि अगर अब रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ये हुआ अगर, तो इसका आउटपुट कैसा होना चाहिए, आउटपुट इक्वल टू नंबर। अगर ऐसा रहा तो वो कैसा रहेगा प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम रहेगा। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, लाइक तुम्हारा एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, कैसा प्रॉब्लम होना चाहिए, एग्जांपल कैसा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन एग्जांपल दिस टाइप ऑफ थिंग। तो कॉमन इसमें हम लोग कैसा मॉडल यूज करते हैं, कैसा मॉडल यूज करते हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। सेकंड कैसा, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। थर्ड वन इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, या नेक्स्ट इज एसवीआर। एसवीआर मतलब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, सपोर्ट। तो अगर रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो कैसा प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, न्यूमेरिकल होगा। तो उसमें किस तरह का मॉडल यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, या रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, एसवीआर, यानी सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। वन बाय वन हम लोग देखेंगे सारे मॉडल, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रहा, तब हम क्या करते हैं यूज, लाइक क्लासिफिकेशन मतलब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं लेवल को, प्रिडिक्ट लेवल, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, स्पैम और स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल, डिजीजेज, डिजीज प्रिडिक्शन कि कैंसर है या नहीं, इस तरह का कुछ भी डिजीज प्रिडिक्शन, ठीक है। तो इसमें कैसा मॉडल यूज करते हैं, जब भी कैटेगरिकल रहेगा तो उसमें कैसा करेंगे, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सेकंड वन इज डिसीजन ट्री, थर्ड वन इज रैंडम फॉरेस्ट, तीसरा इज KNN, ये सब कैपिटल में होना चाहिए, KNN,
नियरेस्ट नेबरहुड बोलते हैं इसे, कितने। उसके बाद हो गया एसपीएम, उसके बाद हो गया नाइव, नाइव बायस। तो अगर कैटेगरिकल रहा तो उसमें हम इस तरह का मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड रहा कैसा, क्लस्टरिंग वाला। इसमें कैसा है, क्लासिफिकेशन वाले के लिए हम ये करते हैं, और रिग्रेशन के लिए हम ये सारे मॉडल यूज करते हैं ना। ये चलो कलर चेंज कर लो बोर्ड, तो ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन रहा तो ये सारा। अब थर्ड किस तरह का होता है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप सिमिलर डेटा। जो तुम्हारे पास जो मान लो डेटा है, अलग अलग तरह का सारे डेटा हो सकता है, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि उस, अगर मान लो तुम्हारे पास, अगर समझते हैं यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में है, जैसे कि यहाँ पे आपको रेड डॉट है, ब्लू डॉट है, ग्रीन डॉट है, सब मिक्स्ड है। तो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला है सबको सेपरेट करना हमारा काम होता है। तो थर्ड वन कैसा है, क्या है, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम ये किस में आता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, इस तरह का चीज जो है इसमें आता है क्लस्टरिंग प्रॉब्लम में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं तो इसका पर्पस इसमें करते क्या है, हम क्या करते हैं, ग्रुप सिमिलर डेटा, हम सिमिलर डेटा को ग्रुप में करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, कस्टमर से कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, ओके। इस तरह का जो प्रॉब्लम है हम किस में करते हैं, क्लस्टरिंग। तो कॉमन मॉडल यूज्ड कैसा होता है, के मींस, एक ये मॉडल हो गया, दूसरा हो गया हायरार्किकल क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एंड डी बी स्कैन, ये इस तरह का हम, इस तरह का मॉडल हम यूज करते हैं क्लस्टरिंग वाले में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हम डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब क्या है। अब नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन किस तरह का होता है समझिएगा। अब मॉडल होता है मॉडल ट्रेनिंग। विद द सिलेक्टेड मॉडल द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल मूव्स टू मॉडल training process. This process involves exposing model to historical data, allowing it to learn pattern, relationship, and dependency with the data set. Basic features of model training is iterative process, optimization process, validation. Three types of process. Okay, है ना? We use. So train model iteratively, adjusting parameter to minimize error and enhance accuracy. Optimization means fine tune model to optimize its predictive capability, and then validation. Regressively, rigorously train model to ensure accuracy to new unseen data.
and step 8 is model evaluation and tuning. So model evaluation involves rigorous testing against validation or test dataset to test accuracy of model on new unseen data. It provides insight into model's strength and weaknesses. If the model fails to achieve desired performance levels, we may need to tune model again and adjust its hyperparameters to enhance predictive accuracy. तो हमको जो चाहिए, जो डिजायर्ड है हमारा, अगर उस तरह का नहीं मिलता तो हम बार बार क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, इस तरह का चीज़ करके हम अपने मॉडल को एक्यूरेट करते हैं जब तक हमारा प्रिडिक्ट एक्यूरेसी जो गुड ना हो। ये सारा कुछ हम देखेंगे, हाइपर पैरामीटर क्या होता है, ये सारा चीज़। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होता है, हम कैसे मॉडल इवोल्यूशन और ट्यूनिंग करेंगे। इवोल्यूशन मैट्रिक्स होता है बहुत सारा, F1 स्कोर, रिकॉल, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इस तरह का। एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ मॉडल थ्रू रिगरस टेस्टिंग। लाइक किस मॉडल में क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या वीकनेस होता है। ठीक है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक्यूरेसी होता है 85% होता है, वहीं जो रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी होता है 92% होता है। तो वहीं एसवीएम का जो एक्यूरेसी होता है क्या 89% होता है। तो व्हाट वी विल चूज, वी विल चूज रैंडम फॉरेस्ट बिकॉज एक्यूरेसी इज हाई। So this type of thing. So in when we use evaluation metrics like accuracy, precision, recall, F1 score, this type of metric, in that we find what we find, MAE, MSE, RMSE, this type of thing. Okay. So regression metrics में mean, square error, मीन, एब्सोल्यूट एरर, इस तरह का थिंग हम फाइंड करते हैं। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, F1 स्कोर, ये सब करते हैं। ये सारा कुछ देखेंगे हम। लास्ट में आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एंड देन मॉडल मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, वन बाय वन देखना पड़ेगा हमको इसमें। ये तो देख लिया, अब इसके आगे ये देखना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है हम समझ गए। डेटा क्लीनिंग मतलब हम रिमूव अनवांटेड ऑब्जर्वेशन, फिक्स स्ट्रक्चर एरर, मैनेज आउटलायर, हैंडल मिसिंग वैल्यू, ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।